And pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCA rules 1965, rule 14. It is very important one. Steps of measure penalty proceedings. It is related to the part 8 already in regarding to the classification control and appeal rules 1965. Already I have uploaded 7 parts. It is the part 8 and it is the very important part. It means if you listen the video up to the end, you can get many information. Very important questions coming from rule 14. It is very important part, so it is useful for different exams. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for upcoming videos. Please you share my channel to your friends, also they can get benefit. You see, you can join my WhatsApp number. It is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. My 2 Telegram channels are there. First one, it is t.me/bap82034, and second one, t.me/asit2034. If you join my channel, then you can get notification for my upcoming videos systematically. So now I am going to start rule 14. It is related to the procedure for imposing measure penalties. 14 section 1 rule position is important one. Rule 14 subsection 1, it is clearly mentioned that measure penalties, you know, in rule 11 clauses 5th to 9, such as dismissal, removal, compulsory retirement, reduction in rank, etc., cannot be imposed directly. ये जो मेजर पेनल्टीज है डायरेक्टली इम्पोज नहीं होगा. उसके लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट होगा, और चार्ज ऑफिसर ऑल्सो नीड द हेल्प ऑफ डिफेंस असिस्टेंट, एंड विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को पेरियूज किया जाएगा, फिर अल्टीमेटली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके का मेजर पेनल्टी एक्चुअली इम्पोज होगा. तो बिफोर imposing such penalties, a proper departmental inquiry must be conducted. Clear? The inquiry must follow. It is very important one. One is rule 14 and rule 15. The procedure related to the inquiry. Rule 15 is action on inquiry report. जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन होगा वो रूल 15 में है. एक्चुअल जो रियल प्रोसीजर रूल 14 में है. Okay, Central Civil Services Classification, Control and Appeal Rules, Rule 14. It is very important one. And another one is there. It is Public Servants Inquiries Act. It is very important one. 1850. उसका जो सेक्शन है 37 of 1850. If that act is applied, तो ये दोनों एक्ट आइदर रूल 14 प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज और पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850. मगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए सभी समय जब मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग होता है रूल 14 को फॉलो किया जाता है. ठीक है. रूल 14 सबसेक्शन 2 रूल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट वन. इट इज पावर्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. उसमें हम ज्यादा चीज नहीं बताएंगे. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का क्या पावर है. डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी बन सकता है, नहीं तो वो इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करेगा. और थर्ड वन, इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट होगा पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850. तो इसमें 3 चीज आपको ध्यान देना है. जो पावर है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, मेजॉरिटी टाइम्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इटसेल्फ इज नॉट द इंक्वायरी अथॉरिटी, राइट. सेकेंड वन, ये जो 14 सबसेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी appoint inquiry authority for formal inquiry under rule 14 of CCA rules 1965. यदि हम रूल 14 को फॉलो नहीं करेंगे, और एक है मैं बोला था पब्लिक सर्वेंट्स इंक्वायरीज एक्ट 1850, वहां पर भी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा फॉर्मल इंक्वायरी के लिए. क्लियर. तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन, इन व्हिच सेक्शन inquiry authority is appointed by the disciplinary authority. Okay, in section
इन रूल 14 सबसेक्शन 2 याद रखिए, ठीक है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी अपॉइंट इंक्वायरी अथॉरिटी फॉर फॉर्मल इंक्वायरी। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलेंगे, स्पेशल प्रोविजन क्या है। सेक्सुअल हरासमेंट केस में आप देखा होगा इन एवरी इंस्टीट्यूशन एंड इन एवरी डिपार्टमेंट इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज देयर। आप देखिए रूल 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स 1964, इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है बहुत क्लैरिटी के साथ। तो जो इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, उसका जो हेड है वही इंक्वायरी अथॉरिटी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद रखना है जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का जो हेड है, जो सीनियर मोस्ट फीमेल ऑफिसर, ओके, इंस्टीट्यूशन का कि डिपार्टमेंट का कि मिनिस्ट्री का जो सीनियर मोस्ट जो फीमेल एम्प्लॉय है वो हेड है और वही इंक्वायरी अथॉरिटी है। ओके, क्लियर। तो यदि कोई सेपरेट प्रोसीजर है तो ठीक है, इफ नो सेपरेट प्रोसीजर इज देयर देन ऑटोमेटिकली यही CCA इंक्वायरी प्रोसीजर मस्ट बी प्रैक्टिकेबल, ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ एक्सप्लेनेशन क्लॉजेस है, इसमें भी ज्यादा नहीं है। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद इंक्वायरी अथॉरिटी होता है तो एज यूजुअल वो इसको इंक्वायरी अथॉरिटी माना जाएगा, और कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है। तो इसमें दो चीज, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हिमसेल्फ इज द इंक्वायरी अथॉरिटी इन सम टाइम्स। ओके, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मे बी एन इंक्वायरी अथॉरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एक क्वेश्चन सवाल आता है, क्या कोई रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट वो इंक्वायरी अथॉरिटी हो सकता है? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेक्शन 14(3) बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चार्जशीट होता है, जो आरोप पत्र होता है, वो कैसे फ्रेम होता है। तो 14 सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फ्रेम द चार्जशीट। इसमें 4 आर्टिकल्स आर देयर, अनेक्सर 1, 4 अनेक्सर्स आर देयर। अनेक्सर 1 में आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जो विभिन्न तरीके का आरोप लगा है वो क्लियरली मेंशन है अनेक्सर 1 में, क्लियर। तो बेसिकली हेडलाइंस रहेगा और ब्रीफली रहेगा कि जो चार्ज ऑफिसर के ऊपर ओके जो आरोप लगा है, इस आरोप लगा है। नेक्स्ट वन, अनेक्सर 2 में स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, पूरा तथ्य है, जो भी एलिगेशंस लगा है, जो भी आरोप लगा है, उसका फैक्ट क्या है, पूरा स्टोरी इसमें आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस वो अनेक्सर 2 में है। अनेक्सर 3 में डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कलेक्ट किया है एविडेंस के आकार में, जो वही डॉक्यूमेंट को, वही दस्तावेज को यूज करके वो एलिगेशन को प्रूव करेगा, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अनेक्सर 4 में लिस्ट ऑफ विटनेसेस, वो भी जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुआ था, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, वहां पर भी विटनेसेस है, वो विटनेसेस को एग्जामाइन करके वहां से एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। तो यहां पर 4 अनेक्सर होता है। जब भी आप चार्जशीट फ्रेम करेंगे तो ये 4 अनेक्सर, एक है आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, जो आरोप लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर। अनेक्सर 2 में स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, पूरा तथ्य रहेगा, पूरा डिटेल्स, एक्चुअली फैक्चुअल फैक्ट्स रहेगा। अनेक्सर 3 में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, और अनेक्सर 4 में लिस्ट ऑफ विटनेसेस, जो विटनेसेस है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये 4 अनेक्सर्स रहेगा जब हम चार्जशीट फ्रेम करेंगे। वही है 14 सबसेक्शन 3। 14 सबसेक्शन 4 में अभी डिलीवरी, चार्जशीट दिया जाएगा, चार्जशीट को डिलीवरी किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, ओके। तो यहां पर जो 14 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए है, ये बोल रहा है कि अभी चार्जशीट हैंडओवर किया जाएगा चार्ज ऑफिसर को, ठीक है। चार्जशीट का डिलीवरी बोल रहा है 14 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए, इसके ज्यादा नहीं है, मैं बता दिया कि चार्जशीट में क्या क्या होता है, मगर उसका डिलीवरी करना है और प्रूफ रखना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सबसेक्शन 4 उसका जो सेकेंड पार्ट है, ओके, सबसेक्शन बी है, द एम्प्लॉइज राइट टू रेस्पॉन्ड। जब चार्ज ऑफिसर को चार्जशीट मिलेगा, उसका 15 डेज के अंदर उसको डिफेंस स्टेटमेंट देना है। तो दो प्रकार से दे सकते हो, एक रिटन, एक ओरल, ठीक है। तो यहां पर जो रेस्पॉन्ड करेगा, जब चार्जशीट मिलेगा चार्ज ऑफिसर को, वो टू वेज से रेस्पॉन्ड करेगा। एक है रिटन डिफेंस, वो खुद लिख कर देगा, और एक है ओरल हियरिंग, मींस वो हार्ड इन पर्सन, वो चाहता है कि फेस टू फेस में, इट मीन्स डायरेक्टली मैं जाऊंगा और वहां पर जो भी फैक्ट है मैं उसके ऊपर बता सकता हूं मुझे डिफेंड करने के लिए। तो दो प्रकार हो सकता है, एक रिटन डिफेंस और एक ओरल हियरिंग। ओरल हियरिंग होने से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका साइन लिया जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी कभी हमारे माइंड में आता है ओनली रिटन डिफेंस, ओरल हियरिंग हो सकता है। दे कैन, जो चार्ज ऑफिसर है वो स्पेशली रिक्वेस्ट करेगा हार्ड इन पर्सन, मैं डायरेक्टली जाकर मैं बोल सकता हूं फेस टू फेस टू द इंक्वायरी अथॉरिटी, ठीक है। और एक रिटन डिफेंस, वो खुद को डिफेंड करने के लिए वो स्टेटमेंट दे देगा, डिफेंस स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, रिटन डिफेंस और ओरल हियरिंग। अच्छा, उसका जो टाइमलाइन है, सपोज चार्जशीट मिला, तो जब चार्जशीट मिलेगा उसका कितना दिन के अंदर डिफेंस स्टेटमेंट देना है, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन 15 डेज। जब चार्जशीट मिलेगा उसका 15 डेज के अंदर डिफेंस स्टेटमेंट देना है, ठीक है। यदि 15 डेज के अंदर नहीं दे पाया चार्ज ऑफिसर, वो रीजन देगा कि इस सर्कमस्टांस के वजह से मैं मेरा डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दे पाया, और अनदर 15 डेज एक्सटेंशन होगा, मगर प्रॉपर रीजन रिकॉर्डेड होगा। तो ऐसे मैक्सिमम 45 डेज दिया जाएगा। 45 डेज के बाद विंडोज शटडाउन हो जाएगा। इट मींस ये मान लिया जाएगा, इंक्वायरी अथॉरिटी ये मान लेगा कि जो चार्ज ऑफिसर है वो उसको डिफेंड करने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है। तो आपको इनिशियली 15 डेज मिलेगा। ओके, 15 days means actually when the charge officer receive charge sheet, then within 15 days he must reply. It means he must submit the defense statement. यदि कुछ प्रॉब्लम है रीजन के साथ, रीजन रिकॉर्डेड होगा एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अनदर 15 days, बट मैक्सिमम 45 days, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेडलाइन। मगर यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो 15 डेज हम कैसे काउंट करेंगे। जैसे आज चार्जशीट आप रिसीव किया, तो सक्सीडिंग डेट कल से स्टार्ट हो जाएगा जो 15 दिन, ठीक है। विद इन 15 डेज बोल रहे हैं कि द चार्ज ऑफिसर मस्ट सबमिट डिफेंस स्टेटमेंट विद इन 15 डेज ऑफ रिसीविंग द चार्जशीट। तो आज रिसीव हुआ तो सक्सीडिंग डे से काउंट होगा जो 15 डेज, ठीक है। ओके, 14 सबसेक्शन 5A मैं बार बार बता रहा हूं कि रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या देखेंगे, हैंडलिंग द रेस्पॉन्स बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इफ द चार्जेस आर डिनाइड। यदि टोटली डिनाई कर रहा है, जो भी चार्ज लगा है, चाहे वो जो चार्ज ऑफिसर रिस्पॉन्ड किया, चाहे रिटन डिफेंस और ओरली, वो मना कर दिया कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है, कि मेरे ऊपर जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस है वो गलत है, ठीक है। तो यदि मना कर देगा तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट देके उसको फॉर्मल इंक्वायरी करेगा। यदि चार्ज ऑफिसर मना कर देता है उसका डिफेंस स्टेटमेंट में और उसका ओरल स्टेटमेंट में, ओके, तब मान लिया जाएगा कि फॉर्मल इंक्वायरी होगा। यदि चार्जेस एडमिटेड, यदि चार्ज वो एडमिट करता है कि हाँ ये जो एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा है ये सही है, तो उसको रिकॉर्डेड कर दिया जाएगा। रिकॉर्डेड होने के बाद उसको साइन करेगा बेसिकली इंक्वायरी अथॉरिटी, और ऑल्सो ही टेक द साइन ऑफ द चार्ज ऑफिसर। यदि यहां पर याद रखना है, यदि चार्ज एडमिट कर लेता है कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा, नो फुल इंक्वायरी इज नीडेड, इतना हम सोचेंगे। यदि चार्जेस डिनाई करता है फॉर्मल इंक्वायरी होगा, यदि चार्जेस एडमिट करता है फर्दर इंक्वायरी नहीं होगा, और देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिटरमाइन करेगा कि किस तरीका का, ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन को देखकर वो डिसाइड करेगा कि किस तरीका का पेनल्टी इंपोज होगा, ठीक है। ये 14
सबसेक्शन 5 और उसका बीट ए है। अच्छा, नेक्स्ट में फेलियर टू रेस्पॉन्ड केस में 14 सबसेक्शन 5 और उसका बीट बी में क्या दिया है, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिमेन साइलेंट and fails to submit a written defense by the deadline, the DA does not just automatically punish them, they must proceed with a तो ये कॉमन चीज है, इसमें भी बोल दिया यदि फेलियर टू रेस्पॉन्ड, यदि रेस्पॉन्ड नहीं करता है वो चार्ज ऑफिसर, तब ऑटोमेटिकली फॉर्मल इंक्वायरी होगा, चाहे वो पर्सनली जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद वो इंक्वायरी अथॉरिटी बन सकता है, नहीं तो वो इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट देके फॉर्मल इंक्वायरी करेगा टू प्रूव द चार्जेस। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सबसेक्शन 5 और उसका बीट सी में है, यदि फॉर्मल इंक्वायरी होगा तो वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो किस लिए काम करेगा ना, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से, ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही प्रेजेंट ऑल डॉक्यूमेंट्स and he present it means all evidences and also examine witnesses to prove the allegation। ठीक है, तो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ये बोल रहा है 14 यदि फॉर्मल इंक्वायरी होगा वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को भी अपॉइंटमेंट देगा। ठीक है, 14(5)(c), क्योंकि देखिए इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट तो 14 सबसेक्शन 2 में है, ये तो इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट करेगा डीए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और 14(5)(c) बोल रहा है कि यदि फॉर्मल इंक्वायरी होता है, इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट होगा, तब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो बेसिकली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से जो भी एविडेंसेस है वो उसको प्रोड्यूस करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी के सामने। ठीक है, 14 सबसेक्शन 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, यदि इंक्वायरी अथॉरिटी को यहां पर है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी क्या क्या रिकॉर्ड फॉरवर्ड करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, व्हिच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंक्वायरी अथॉरिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को। फर्स्ट है चार्जेस, जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, जो स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशन से, ओके, वो हैंडओवर करेगा, और डिफेंस स्टेटमेंट, जो चार्ज ऑफिसर खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाव के लिए जो स्टेटमेंट दिया उसको हैंडओवर करेगा। ठीक है, थर्ड है विटनेस स्टेटमेंट्स, डिसिप्लिनर जो विटनेसेस है एक्चुअली एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, वो विटनेसेस का स्टेटमेंट को हैंडओवर करेगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ डिलीवरी क्या है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो चार्जशीट दिया है चार्ज ऑफिसर को, उसका प्रूफ चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में जब इंक्वायरी अथॉरिटी उसका इंक्वायरी स्टार्ट करेगा तब वो मना कर सकता है कि मुझे कोई चार्जशीट नहीं मिला है। तो इसलिए प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जशीट दिया था चार्ज ऑफिसर को, उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी चाहिए, और प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंटमेंट जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया उसका ऑर्डर। तो ये 5 चीज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा। ठीक है, ये 14 सबसेक्शन 6 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, और आपको एमसीक्यू जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन है आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस एंड इंप्यूटेशंस ऑफ मिसकंडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड है जो डिफेंस स्टेटमेंट दे दिया चार्ज ऑफिसर ने। थर्ड में विटनेस स्टेटमेंट, जो भी विटनेसेस एक्चुअली जो गवाह है एक्चुअली ये केस का, जो भी स्टेटमेंट दिए हैं वो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास है, वो हैंडओवर करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को। और जो चार्जशीट दिया है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर को, उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी, जब उसको डिलीवर किया था उस समय प्रूफ लिया था, उस समय चार्ज ऑफिसर का साइन फाइन होगा, वो उसको हैंडओवर करेगा इंक्वायरी ऑफिसर को। और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी हैंडओवर करेगा। ये 5 चीज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंक्वायरी अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी इंक्वायरी अथॉरिटी को हैंडओवर हो चुका है चार्ज डॉक्यूमेंट्स,
आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशंस, ये सब हैंड ओवर हो चुका है। 14 सबसेक्शन 7 ये बोल रहा है कि अभी इंक्वायरी स्टार्ट करेगा इंक्वायरी ऑफिसर। द गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट अपीयर पर्सनली बिफोर द इंक्वायरी अथॉरिटी। वो खुद जो चार्ज ऑफिसर है वो अभी इंक्वायरी अटेंड करेगा, जो इनिशियल इंक्वायरी करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, वो इंक्वायरी अथॉरिटी अभी उसको बुलाएगा। तो स्पेसिफिक इसमें क्या है, इसमें मैं बढ़िया बता देता हूं कि जब चार्ज डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया इंक्वायरी अथॉरिटी, जब चार्ज डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया उसका 10 डेज के अंदर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और चार्ज ऑफिसर को बोलेगा कि आप अपीयर करो, आप अटेंड करो, स्पेसिफिक डेट दे देगा और डेट टाइम दे देगा। ठीक है, मगर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, जो 10 वर्किंग डेज है आपको याद रखना है कि जिस डेट में इंक्वायरी अथॉरिटी चार्ज डॉक्यूमेंट्स को रिसीव किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसका 10 डेज के अंदर वो उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट करेगा और चार्ज ऑफिसर को कॉल करेगा और चार्ज ऑफिसर को खुद अपीयर होना है इंक्वायरी में। और यदि कुछ ऐसा रीजन है कि वो चार्ज ऑफिसर बोल रहा है कि मैं ये जो डेट की ये जो टाइम दिया गया मैं अटेंड नहीं कर सकता, अनदर 10 डेज एक्सटेंड होगा, अनदर 10 डेज एक्सटेंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मगर यहां पर जो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बोलते हैं आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई जो इंक्वायरी अथॉरिटी जो टाइम दिया कि 10 डेज के अंदर इंक्वायरी करेगा, वो 10 डेज कहां से काउंट होगा। यहां पर याद रखना है कि व्हेन द इंक्वायरी अथॉरिटी रिसीव द चार्ज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, सपोज आज रिसीव किया वो चार्ज डॉक्यूमेंट्स, कल सक्सीडिंग डेट है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, सो विद इन 10 डेज वो कॉल करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप अपीयर हो जाओ इंक्वायरी में। यदि वहां पर चार्ज ऑफिसर बोलता है कि मेरा ये काम है कि आप जो स्पेसिफिक डेट टाइम दिया है मैं इसमें अटेंड नहीं कर सकता और थोड़ा उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, फिर अनदर 10 डेज एक्सटेंड होगा। क्लियर हो गए। ये 14 सबसेक्शन 7 बोल रहा है। ठीक है, ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, जो हियरिंग करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, और जो कॉल कर रहा है चार्ज ऑफिसर को कि पर्सनली आप आ जाओ और इंक्वायरी अटेंड करो। ठीक है। 14(8) बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सबसेक्शन 8 में आप इसमें क्या होगा, जैसे वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने प्रेजेंटिंग ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से प्रेजेंटिंग ऑफिसर जितना भी एविडेंस है वो प्रोड्यूस करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। इसी साइड में डिफेंस असिस्टेंट वैसा ही, जो चार्ज ऑफिसर है वो डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेगा खुद को डिफेंड करने के लिए, खुद को बचाव के लिए। अच्छा, डिफेंस असिस्टेंट याद रखना है, जो डिफेंस असिस्टेंट होगा वो चाहे वर्किंग एम्प्लॉय है और रिटायर्ड एम्प्लॉय है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग एम्प्लॉय हो सकता है, रिटायर्ड एम्प्लॉय हो सकता है। अच्छा, जो डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट देगा चार्ज ऑफिसर, वो सेम हेडक्वार्टर से हो सकता है, जिस हेडक्वार्टर से चार्ज ऑफिसर है उसी हेडक्वार्टर से हो सकता है, नहीं तो जहां पर इंक्वायरी हो रहा है, जिस प्लेस में इंक्वायरी हो रहा है वहां से वो ले सकता है डिफेंस असिस्टेंट। नहीं तो यदि वो आउटसाइड से लेता है तब वो इंक्वायरी अथॉरिटी का परमिशन लेगा और रीजन भी देगा कि इसी रीजन के वजह से एक्चुअली मैं मेरा हेडक्वार्टर से डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं किया, कि जो प्लेस में इंक्वायरी हो रहा है वहां पर मैं डिफेंस असिस्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं कर पाया क्योंकि ये रीजन की वजह से, तो मैं आउटसाइड से ले रहा हूं। तो परमिशन देगा इंक्वायरी अथॉरिटी और आप रीजन दे दो। ठीक है, क्योंकि डिफेंस असिस्टेंट, जब डिफेंस असिस्टेंट का हेल्प लेता है चार्ज ऑफिसर, वो ऑन बिहाफ ऑफ द चार्ज ऑफिसर, चार्ज ऑफिसर के तरफ से डिफेंस असिस्टेंट मेक आर्गुमेंट टू प्रोटेक्ट, टू सेव, टू डिफेंड द चार्ज ऑफिसर। वो ट्राई करेगा डिफेंस असिस्टेंट कि मेरा ये जो चार्ज लगा है ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये गलत है, वो डिफेंड करेगा। ओके, वो बचाव करेगा, इसलिए डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट करेगा चार्ज ऑफिसर।
अच्छा, और एक है, क्या डिफेंस असिस्टेंट लीगल प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है? हाँ, यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर, वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को जो अपॉइंटमेंट दिया वो लॉयर है। यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर लॉयर है तो अब चार्ज ऑफिसर एक लॉयर को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में ले सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। मगर एक कंपल्सरी है, वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर लॉयर होगा तो यहां पर भी डिफेंस असिस्टेंट लॉयर हो सकता है। मगर अदर केस में सपोज वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर लॉयर नहीं है, वो यहां पर डायरेक्टली डिफेंस असिस्टेंट चार्ज ऑफिसर एक लॉयर को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में नहीं ले सकता। ठीक है, तो वो वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को का परमिशन लेगा और रीजन भी दे देगा, सर्कमस्टांसेस दे देगा। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एग्रीड होता है, वो सर्कमस्टांसेस को पेरीयूज करता है, रीड करता है, यदि होता है वो अलाउ करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप जो डिफेंस असिस्टेंट लोगे वो लॉयर हो सकता है, मगर डायरेक्टली आप नहीं ले सकते। मगर हाँ, कंडीशन है वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर लॉयर होगा, यहां पर चार्ज ऑफिसर जो डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट करेगा वो लॉयर हो सकता है। मगर अदर केस में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का परमिशन चाहिए और प्रॉपर सर्कमस्टांस, प्रॉपर रीजन देना चाहिए क्यों आप लॉयर को डिफेंस असिस्टेंट के आकार में लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये जो रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में आप थोड़ा देख लीजिए, द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट टेक द असिस्टेंस ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ। अच्छा, यहां पर एक दे दिया, मैं अभी बताया कि जो डिफेंस असिस्टेंट, चार्ज ऑफिसर जो डिफेंस असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट करेगा खुद को बचाव के लिए, चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो रिटायर्ड हो, वो तो ले सकता है। मगर उनके पास साइमल्टेनियसली 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज अभी एक रिटायर्ड पर्सन है कि वर्किंग पर्सन है, सर्विंग पर्सन है, उसके पास ऑलरेडी 3 केसेस में वो डिफेंस असिस्टेंट है, वो डिफेंस असिस्टेंट है 3 केसेस में, क्या वो 4th के लिए ले सकता है? 4th के लिए नहीं हो सकता। साइमल्टेनियसली एक चाहे रिटायर्ड हो कि चाहे सर्विंग एम्प्लॉय हो, उसके पास 3 पेंडिंग डिसिप्लिनरी केसेस में डिफेंस असिस्टेंट का पावर रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा सपोज मैं डिफेंस असिस्टेंट के आकार में काम कर रहा हूं, मेरे पास अभी साइमल्टेनियसली 2 केसेस है, क्या मुझे और कोई 3rd केसेस के लिए ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि साइमल्टेनियसली द डिफेंस असिस्टेंट फंक्शन और वर्क फॉर 3 केसेस, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट वन 14, ये रूल पोजीशन देखिए 14 सबसेक्शन 8 उसका बीट बी, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट। मैं बता दिया था कि रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट भी डिफेंस असिस्टेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी डिफेंस असिस्टेंट के आकार में ले सकते हैं। ठीक है, मगर उसके पास साइमल्टेनियसली कितना केसेस होना चाहिए? सपोज 2 केसेस है तो 3rd केस के लिए हम ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम साइमल्टेनियसली 3 केसेस वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट वन 14 सबसेक्शन 9। 14 सबसेक्शन 9 में अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगा, इसमें 2 कंडीशन है। सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट जो रिटन स्टेटमेंट दिया था वो एडमिट को रिसीव नहीं किया था, जो चार्जशीट का जवाब दिया था वो मना कर दिया था कि ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है ये गलत है। ओके, कि वो कोई भी रिटन डिफेंस नहीं दिया था, कभी कभी चार्जशीट का जवाब नहीं दिया था, तो 2 आइदर और, यदि दिया था वो उसने मना किया था कि जो भी चार्जेस आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, जो भी इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट है वो गलत है। सेकंड चीज, सपोज वो जवाब नहीं दिया था, डिफेंस स्टेटमेंट का जवाब नहीं दिया था, जस्ट चार्जशीट रिसीव किया, वो चुपचाप रह गया। ठीक है, इस केस में अभी इंक्वायरी अथॉरिटी करेगा अपॉइंटमेंट। मैं बताया था आपको, जब इंक्वायरी अथॉरिटी चार्ज डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से, उसका 10 डेज के अंदर वो कॉल करेगा चार्ज ऑफिसर को कि आप अपीयर हो जाओ इंक्वायरी में। तो वहां पर वो पूछेगा क्या जो चार्जेस लगा है आप एडमिट करते हो? ठीक है, ये इंक्वायरी अथॉरिटी का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, प्रिलिमिनरी हियरिंग है।
क्या जो चार्जेस लगाए आप एडमिट करते हो? यदि आप एडमिट नहीं करते हो तो आपको डिफेंड करने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है? तो आइदर और, वो सिंपली दो क्वेश्चन, एक में पूछेगा आपके ऊपर जो आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस है क्या उसको एडमिट कर रहे हो? यदि एडमिट नहीं कर रहे हो तो आपको डिफेंड करने के लिए आप अभी तैयार करो, ठीक है? क्लियर? ये 14 सबसेक्शन 9 जो है ये इंक्वायरी अथॉरिटी का फर्स्ट हियरिंग है, जो प्रिलिमिनरी हियरिंग है इंक्वायरी अथॉरिटी का, ठीक है? नेक्स्ट वन, इसमें क्या है? इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट प्लीड्स गिल्टी टू एनी चार्ज। अच्छा, यदि सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर 5 चार्ज लगा है, वो भी 3 चार्ज एडमिट किया, एक्चुअली 5 चार्जेस imposed on the government servant, but he admitted 3 charges, तो जो एडमिट कर दिया उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होगा। मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 2 चार्जेस के ऊपर वो एडमिट नहीं किया, उसी का ही इंक्वायरी होगा, वही चीज दे दिया, ठीक है? और जो चार्जेस को एडमिट किया, इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा? रिकॉर्डेड करेगा, खुद का साइन और चार्ज ऑफिसर का साइन ले जाएगा, और जिसको एडमिट नहीं किया उसको बोल देगा कि आप ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगाए आप एडमिट नहीं किया, तो अभी आपको खुद को डिफेंड करने के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है? अच्छा, 14 सबसेक्शन 10 को चलेंगे। इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एडमिट्स एनी ऑफ द चार्जेस, यदि, ये बहुत सिंपल है, 14 सबसेक्शन 10 में यदि वो एडमिट कर लेता है, जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस है एडमिट कर लेता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको इंक्वायरी अथॉरिटी रिकॉर्डेड करेगा और ही पुट हिज साइन एंड टेक द साइन ऑफ द चार्ज ऑफिसर, खत्म। और जिस आर्टिकल ऑफ चार्ज को वो एडमिट नहीं करेगा तो उसके ऊपर फिर फर्दर इंक्वायरी होगा और वो बोल देगा कि ये आर्टिकल ऑफ चार्ज आप एडमिट नहीं किया, तो आप खुद को आप बचाव करो, तैयार करो आप, ओके, एविडेंसेस तैयार करो आपको बचाव करने के लिए। तो ये सिंपल चीज है 1410, ठीक है? क्लियर? 14 सबसेक्शन 11 में चलेंगे। 14 सबसेक्शन 11 में अभी इंक्वायरी वो स्टार्ट करेगा। तो यहां पर जब एडमिट नहीं किया चार्ज ऑफिसर कि मेरे ऊपर जो चार्ज लगा है वो गलत है, ठीक है, तो ये प्रिलिमिनरी हियरिंग में बोल दिया, ओके, चार्ज ऑफिसर। तो अभी इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा? इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आप रेडी हो जाओ, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए आप रेडी हो जाओ, चार्ज को प्रूव करने के लिए आप रेडी हो जाओ। वो किसको बोलेगा? प्रेजेंटिंग ऑफिसर को। और वो अडजर्न कर देगा, इंक्वायरी को स्थगित कर देगा, और जो स्थगित करेगा नॉट मोर देन 30 डेज, 30 डेज से ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट में वो एक रिटन ऑर्डर पास करेगा। रिटन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करेगा चार्ज प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आपके पास जो भी सबूत है उसको रेडी करो एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए। इन्फॉर्म टू द, जो ऑर्डर, रिटन ऑर्डर के ऊपर बता रहा हूं, रिटन ऑर्डर में क्या रहेगा आप क्वेश्चन पूछोगे। सो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर इन रिटन ऑर्डर ऑफ द इंक्वायरी अथॉरिटी? स्थगित कर दिया इंक्वायरी को नॉट मोर देन 30 डेज, और एक ऑर्डर पास करेगा, इसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि ऑलरेडी इन्फॉर्म टू द प्रेजेंटिंग ऑफिसर टू प्रोड्यूस द एविडेंस टू प्रूव द एलिगेशन। और इसी रिटन ऑर्डर में मेंशन करेगा चार्ज ऑफिसर को कि 5 डेज के अंदर जो चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स है, आपको आपका चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स है आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो 5 डेज के अंदर। जब यही ऑर्डर, जो रिटन ऑर्डर जो पास करेगा उसका 5 डेज के अंदर इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर इन योर चार्जशीट, और वो 5 डेज भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। और डेट टाइम बोल देगा कि इस डेट में डॉक्यूमेंट्स विटनेसेस को एग्जामाइन किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स विटनेसेस प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है, और डेट टाइम दे देगा।
तो ये जो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर में क्लियरली मेंशन कर देगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आपका एविडेंस को आप प्रोड्यूस करो, और चार्ज ऑफिसर को बोलेगा कि 5 डेज के अंदर आप जो डॉक्यूमेंट्स चार्ज आपका चार्जशीट में है उसको इंस्पेक्ट करो, और वो भी 5 डेज एक्सटेंड हो सकता है, मगर रीजन, एक स्पेसिफिक रीजन देना चाहिए चार्ज ऑफिसर को, ठीक है। और डेट टाइम दे देगा कि इसी डेट इस टाइम में एक्चुअली इंक्वायरी होगा, ठीक है। तो यहां पर दे दिया व्हाट राइट्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एडजर्नमेंट। फर्स्ट वन इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स में बताया अभी कि जब ऑर्डर इश्यू करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, तब वो ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करेगा कि 5 डेज के अंदर आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, इंस्पेक्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स विद इन 5 डेज ऑफ द ऑर्डर, और इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 5 डेज। जब वो ऑर्डर इश्यू करेगा, ओके, जो ऑर्डर इश्यू करेगा ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करेगा कि प्रेजेंटिंग इसी डेट में इसी टाइम में इंक्वायरी होगा, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर को जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी विटनेसेस है उनको प्रोड्यूस करेगा, और यदि चाहता है चार्ज ऑफिसर 5 डेज के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स चार्जशीट में मेंशन है उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, और इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 5 डेज, ठीक है। ये 14(11) सबसेक्शन आई। और डबल आई में क्या बोल रहा है, ये जो रूल पोजीशन देखिए, वो भी चार्ज ऑफिसर को बताएगा कि आपका विटनेसेस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप दे दो, आपका जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है आप दे दो, ठीक है। ही वांट्स टू एग्जामाइन इन हिज डिफेंस, आपको डिफेंड करने के लिए आपके पास जो विटनेस है उनका लिस्ट दे दो। तो ये जो 14(11) है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वो देखा कि चार्ज ऑफिसर डिनाई कर दिया, जो भी आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस लगा है उसको वो एडमिट नहीं किया, तो वो इमीडिएटली क्या करेगा, इंक्वायरी को एडजर्न कर देगा, एडजर्न करके एक ऑर्डर इश्यू करेगा, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन करेगा कि इसी डेट इसी टाइम में इंक्वायरी होगा। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोल दिया कि आप आपका डॉक्यूमेंट्स, आपका विटनेसेस को प्रोड्यूस करोगे, और ऑर्डर में मेंशन करेगा चार्ज ऑफिसर को कि इसी डेट में ऑर्डर इश्यू हो रहा है, और 5 डेज के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपका चार्जशीट में है उसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, और यदि कुछ प्रॉब्लम है आप रीजन के साथ दे दो, और अनदर 5 डेज एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट वन, उसी ऑर्डर में मेंशन करेगा कि चार्ज ऑफिसर को कि आपके पास कुछ विटनेसेस है आपको डिफेंड करने के लिए, उसका भी लिस्ट दे दो, क्लियर। तो 14(11) डबल आई, सबमिट डिफेंस विटनेसेस बाय द चार्ज ऑफिसर। चलो अच्छा, यहां पर और एक चीज है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट पूछता है आइदर ओरली और इन राइटिंग, मौखिक आकार में और राइटिंग में, ओरली और राइटिंग में पूछता है कि जो विटनेसेस का लिस्ट है जो मेरा चार्जशीट में था 14, ये तो आप देखिए, ये चार्जशीट फ्रेम हुआ था, चार्जशीट फ्रेम में आप एनेक्स और 4 देखिए, वहां पर लिस्ट ऑफ विटनेसेस है। तो यहां पर अभी गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्वायरी अथॉरिटी को बोल रहा है आइदर ओरली और इन राइटिंग कि मुझे उनका स्टेटमेंट चाहिए, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस था मेरा चार्जशीट में, कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स मुझे चाहिए। कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स को मैं थोड़ा पेरियूज करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, वो डिमांड कर सकता है इंक्वायरी अथॉरिटी को। तो टाइम लिमिट क्या होगा, आज अर्ली एज पॉसिबल, इंक्वायरी अथॉरिटी आज अर्ली एज पॉसिबल वो कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस को प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द विटनेसेस आर एग्जामाइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, एटलीस्ट 3 डेज बिफोर, ठीक है, द विटनेसेस आर एग्जामाइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यदि इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जो चार्ज ऑफिसर डिमांड करता है इंक्वायरी अथॉरिटी को कि मुझे तो मिल चुका है लिस्ट ऑफ विटनेसेस, मगर उनका स्टेटमेंट को मैं देखना चाहता हूं, वो स्टेटमेंट्स का कॉपी मुझे प्रोड्यूस किया जाए, फॉर कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस मुझे चाहिए। तो इसमें जो टाइम लिमिट है वो क्लियरली मेंशन है कि इंक्वायरी अथॉरिटी आज अर्ली एज पॉसिबल कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस का देगा, नहीं तो एटलीस्ट 3 डेज बिफोर द विटनेसेस आर एग्जामाइंड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, ठीक है।
तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और ये भी हो सकता है इंक्वायरी अथॉरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट 3 days बिफोर द विटनेसेस आर एग्जामाइंड बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी, ठीक है, क्लियर। 1411 ट्रिपल आई में यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब ऑर्डर इशू किया, यहां पर और एक मजा बात आता है 1411 ट्रिपल आई में, जब इंक्वायरी अथॉरिटी ऑर्डर इशू किया कि इस डेट इस टाइम में इंक्वायरी होगा, चार्ज ऑफिसर को बोला कि आप डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करना चाहते हो तो 5 दिन में कर लो, या यदि आप ऑथेंटिक रीजन देते हो और 5 दिन एक्सटेंड होगा, और आपके पास कुछ विटनेसेस है आपको डिफेंड करने के लिए, उसका लिस्ट भी दे दो। प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोल देगा कि आपको जो एविडेंस प्रोड्यूस करना है आप रेडी करो, ये सब बोल देगा। जब ये ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट मीन द चार्ज ऑफिसर, वो क्या करेगा, विद इन 10 days एक नोटिस भेजेगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, गिव ए रिटन नोटिस विद इन 10 days। विद इन 10 days मीन्स हम कैसे काउंट करेंगे, विद इन 10 days मीन्स जो ऑर्डर इशू किया फर्दर इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी अथॉरिटी, जब ऑर्डर इशू करेगा, ऑर्डर में क्या क्या होगा मैं मेंशन कर चुका हूं, उसी का 10 days के अंदर चार्ज ऑफिसर एक नोटिस दे देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स मेरा चार्जशीट में मेंशन नहीं है, तो इसमें दो, आइदर वो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट कस्टडी में है तो मुझे चाहिए मुझे डिफेंड करने के लिए, नहीं तो ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए क्योंकि मुझे मेरा चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट था ये डॉक्यूमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब ऑर्डर इशू करेगा फर्दर इंक्वायरी के लिए, उसी का 10 days के अंदर गिव ए रिटन नोटिस विद इन 10 days, याद रखिए, जब उसको ऑर्डर इंक्वायरी अथॉरिटी इशू करेगा चार्ज ऑफिसर को कि इस डेट में इस टाइम में इंक्वायरी होगा, तो जब ऑर्डर इशू करेगा उसका 10 days के अंदर चार्ज ऑफिसर एक नोटिस दे देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को, और ऑल्सो इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 10 days, ठीक है। अच्छा, वो नोटिस में क्या डिमांड करेगा कि मुझे गवर्नमेंट कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट है मुझे चाहिए क्योंकि रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, और नेचुरल जस्टिस के लिए मुझे डिफेंड करने के लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं तो वो ये बोलेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए क्योंकि मुझे चार्जशीट में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स था ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे ये रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है मुझे दे दो क्योंकि मुझे खुद को बचाव करने के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा जो गवर्नमेंट कस्टडी में है, और वो बोलेगा कि जो ओरिजिनल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिया गया था चार्जशीट में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ओके, मुझे डिफेंड करने के लिए, ठीक है। और ये जो नोटिस देगा 10 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोले 10 days कैसे काउंट होगा ना, इट मींस द चार्ज ऑफिसर गिविंग नोटिस टू इंक्वायरी अथॉरिटी विद इन 10 days ऑफ इशूइंग ऑफ ऑर्डर बाय इंक्वायरी अथॉरिटी। जब इंक्वायरी अथॉरिटी ऑर्डर इश्यू करेगा फर्दर इंक्वायरी के लिए, उसका 10 days के अंदर चार्ज ऑफिसर एक नोटिस दे देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, और वो भी 10 days एक्सटेंड हो सकता है रीजन के साथ। चलो, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, तो यहां पर द गवर्नमेंट, अच्छा इंपॉर्टेंट, द गवर्नमेंट मस्ट, अच्छा यहां पर जो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है चार्ज ऑफिसर, यदि रिलेवेंट होगा तब उसको इंक्वायरी अथॉरिटी देगा, यदि रिलेवेंट नहीं होगा उसको नहीं दिया जाएगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि जो इंक्वायरी है, जो फैक्ट के ऊपर इंक्वायरी है, जो एलिगेशंस लगा है, उसी के साथ एक्चुअली लिंक होना चाहिए डॉक्यूमेंट का। यदि और कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है चार्ज ऑफिसर, irrelevant document, that document has no link with the it means inquiry, has no link with the allegation, तो वो डॉक्यूमेंट कैसे देगा, ठीक है कि नहीं। तो याद रखना है जो डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है चार्ज ऑफिसर को रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अच्छा 14 सबसेक्शन 12 को चलेंगे। 14 सबसेक्शन 12 में जब गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्यूमेंट डिमांड करेगा तब इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा ना, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट का कस्टडी है उसको फॉरवर्ड कर देगा कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट है कि नहीं, आप देखिए, फॉरवर्ड टू द अथॉरिटी हु हैज कस्टडी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स, और उनको बोल देगा कि स्पेसिफाइड डेट में आपको देना है, ये डॉक्यूमेंट को देना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट डिमांड किया है चार्ज ऑफिसर।
और इसमें पावर टू रिफ्यूज भी है। इंक्वायरी अथॉरिटी मना कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली मना कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो चार्ज ऑफिसर को चाहिए ये इरेलीवेंट है, इसका कोई लिंक नहीं है, ये जो एलिगेशन लगा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर उसके साथ कोई लिंक नहीं है, वो भी मना कर सकता है क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, इंक्वायरी अथॉरिटी मना कर सकता है चार्ज ऑफिसर को, मगर वो रीजन के साथ दे देगा कि इसी रीजन की वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट अनदर वन, अच्छा 14 सबसेक्शन 13, इसमें क्या है, ड्यूटी टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। जिस अथॉरिटी के पास डॉक्यूमेंट है तो वो प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट, यदि नहीं है वो एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ओके, और ये जो होगा विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीविंग द रिक्विजिशन। ये देखिए टाइम लिमिट, जब रिक्विजिशन मींस जो डिमांड, जब डिमांड किया गया था, कि डिमांड कौन किया था, चार्ज ऑफिसर किया था कि मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, किसको किया था, इंक्वायरी अथॉरिटी को। अच्छा, देन इंक्वायरी अथॉरिटी इसको फॉरवर्ड किया अथॉरिटी के पास, जिस अथॉरिटी वो डॉक्यूमेंट का कस्टोडियन है, और ये जो 1 मंथ होगा जो इंक्वायरी अथॉरिटी फॉरवर्ड करेगा अथॉरिटी को, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है, जब फॉरवर्ड करेगा और उसको वो रिसीव करेगा, अथॉरिटी हु इज द कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट, व्हेन ही रिसीव इट, उसका 30 डेज के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट को। तो रिक्विजिशन मींस वही डिमांड। तो याद रखना है, जिस अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट है, वो जब रिक्विजिशन रिसीव करेगा, वो डिमांड को रिसीव करेगा, किससे, इंक्वायरी अथॉरिटी से, उसका 30 डेज के अंदर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, नहीं तो एक नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा। यहां पर टाइम लिमिट क्लियर हो गया, टाइम लिमिट क्लियर हो गया। तो यहां पर याद रखना है, द अथॉरिटी who is the custodian of the document when he received the requisition from the inquiry authority, then within 30 days, within 1 month, within 1 month, 1 month means 30 days हम लेंगे, within 1 month he must produce the document. If document is not available, then produce non availability certificate. ये 14 सबसेक्शन 13 बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक्सेप्शंस है, यदि कुछ डॉक्यूमेंट सपोज डिस्क्लोज होने के वजह से पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म है, कि जो स्टेट सिक्योरिटी के लिए, स्टेट सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा, उस तरीके का डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं होगा, तो जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन अथॉरिटी है, वो डायरेक्टली मना कर देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो मांगा है चार्ज ऑफिसर, ये मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म होगा, कि जो स्टेट का सिक्योरिटी है वो अफेक्ट होगा, और वो राइटिंग में लिख कर देगा इंक्वायरी अथॉरिटी को कि ये डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज नहीं होगा। देन इंक्वायरी अथॉरिटी वैसे ही चार्ज ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा, रिफ्यूज करेगा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट मांगा है ये नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सच रिफ्यूजल मैं बता दिया कि भाई गवर्नमेंट इंक्वायरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देगा कि इस रीजन के वजह से आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये जो 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एक्चुअली अभी इंक्वायरी एग्जामाइन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए याद रखिए, जो 14 सबसेक्शन 14 है, जो भी एविडेंस प्रेजेंटिंग ऑफिसर, जो भी एविडेंस प्रेजेंटिंग ऑफिसर प्रोड्यूस कर रहा है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, यहां पर उसी को एग्जामाइन किया जाएगा। अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर अभी प्रोड्यूस करेगा विटनेसेस को एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट्स को एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस टू प्रूव द चार्जेस, दो प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जो है प्रेजेंटिंग ऑफिसर के पास वो प्रोड्यूस करेगा, चाहे ओरल एविडेंस तो रिकॉर्डेड हुआ है विटनेसेस का, और डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अभी एग्जामाइन होगा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, जो भी यहां पर एविडेंस को एग्जामाइन किया जाएगा वो सब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से, और इसमें जब ये इंक्वायरी होगा कौन कौन बैठेंगे, इंक्वायरी अथॉरिटी ऑब्जर्व रहेगा, और इस साइड में प्रेजेंटिंग ऑफिसर, इस साइड में चार्ज ऑफिसर प्लस उसका डिफेंस असिस्टेंट,
और चार्ज ऑफ जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो प्रोड्यूस करेगा विटनेसेस को और प्रोड्यूस करेगा डॉक्यूमेंट्स को एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट हुआ एग्जामिनेशन। फर्स्ट प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसका जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस है, जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस था चार्जशीट में चार्ज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के तरफ से प्रेजेंटिंग ऑफिसर अभी ओरल विटनेस को प्रोड्यूस करेगा तो एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, तो तब एग्जामिनेशन इन चीफ में प्रेजेंटिंग ऑफिसर पूछेगा विटनेसेस को कि आप बताओ ये जो एलिगेशन लगा है, ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस लगा है, ये जो विभिन्न तरीके का आरोप है, क्या आपका राय है। ओके, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस है, ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का विटनेसेस जो है जो एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, तो जब प्रेजेंटिंग ऑफिसर पूछेगा ओके विटनेसेस को, जो विटनेसेस को वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है उनको पूछेगा, तो वो है एग्जामिनेशन इन चीफ। अच्छा, पूछने के बाद एक क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसको क्रॉस एग्जामाइन कौन करेगा, ना चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट। जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो विटनेसेस को प्रोड्यूस किया उनको पूछा, उनको पूछने के बाद फिर चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट उसको पूछेंगे, वो है क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर पुनः परीक्षण होगा, री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन कौन करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा। तो इसमें जो विटनेसेस है, ये विटनेसेस किसका है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का है, जो एलिगेशन को कि जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस को प्रूव करने के लिए ये ओरल विटनेसेस एक्चुअली यहां पर एग्जामाइन किया जाएगा। फर्स्ट प्रेजेंटिंग ऑफिसर पूछेगा विटनेसेस को, जो विटनेसेस डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का है, और फिर उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट, और फिर उसको री एग्जामाइन करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ये होने के बाद और इंक्वायरी अथॉरिटी भी क्वेश्चन पूछ सकता है विटनेसेस को, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कोई भी विटनेस को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, कुछ तथ्य कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, वही चीज यहां पर दे दिया। नेक्स्ट वन, अभी 14 सबसेक्शन 15 आ गया। आप देखिए, अभी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो भी एविडेंस था वो भी प्रोड्यूस हो चुका है, क्योंकि 14 में प्रेजेंटिंग ऑफिसर तो प्रोड्यूस कर दिया, विटनेसेस को प्रोड्यूस कर दिया, उसका डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर दिया, उनका एग्जामिनेशन हो गया एलिगेशन को प्रूव करने के लिए। अच्छा, 14-15 में वही क्लियर दिया है, बिफोर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज केस क्लोजेस, इंक्वायरी अथॉरिटी ये बोलेगा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आपके पास कुछ न्यू एविडेंस है जो ओरिजिनली लिस्टेड नहीं था, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था कि जो ओरिजिनल विटनेसेस थे उसमें नहीं था, क्या आपके पास कुछ न्यू एविडेंस है, आप दे सकते हो। खुद इंक्वायरी ऑफिसर न्यू एविडेंस दे सकता है, न्यू एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है खुद इंक्वायरी ऑफिसर, कि इंक्वायरी ऑफिसर रिकॉल एंड री एग्जामाइन एनी विटनेस, किसको कोई भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है और पुनः परीक्षण री एग्जामाइन कर सकता है। तो ये न्यू एविडेंस के ऊपर बात आ गया, जब वहां पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको एग्जामाइन करने के बाद जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का केस क्लोज होने से पहले इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आपके पास और कोई न्यू एविडेंस है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, कि इंक्वायरी अथॉरिटी के पास खुद के पास कुछ एविडेंस है कि वो खुद रिकॉल एंड री एग्जामाइन एनी विटनेस। ठीक है, इसमें क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोटेक्शन, यदि न्यू एविडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि प्रेजेंटिंग ऑफिसर कोई न्यू एविडेंस प्रोड्यूस करता है तो उसमें फिर चार्ज ऑफिसर मांगेगा कि मुझे कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ एडिशनल एविडेंस, क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में नहीं था, अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है न्यू एविडेंस, तो उसका मुझे कॉपी चाहिए। तो इसीलिए फिर इंक्वायरी एडजर्नमेंट हो जाएगा 3 क्लियर डेज। अच्छा, ये 3 क्लियर डेज क्या है ना, जिस डेट में एडजर्नमेंट होगा, इंक्वायरी बंद होगा, और जिस डेट में हियरिंग फिर स्टार्ट होगा, वो दोनों को हम एक्सक्लूड करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस डेट में स्थगित हो गया इंक्वायरी और जिस डेट में फिर अगेन इंक्वायरी
हियरिंग स्टार्ट होगा, वो दोनों को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर 3 दिन दे दिया जाएगा और इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 3 दिन के अंदर आप न्यू डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो न्यू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया आप उसको इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है। और उसमें भी गवर्नमेंट सर्वेंट को बोल दिया जाएगा कि आपके पास कुछ न्यू एविडेंस है, आप भी प्रोड्यूस कर सकते हो आपको डिफेंड करने के लिए, वो भी इंक्वायरी अथॉरिटी उसको भी अलाउ, तो दोनों साइड को अलाउ करेगा। वहां पर प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आपके पास कुछ न्यू एविडेंस है एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, आप दे दो। यदि वो देता है तब वो चार्ज ऑफिसर मांगेगा कि अभी जो न्यू एविडेंस दिया प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसका कॉपी मुझे चाहिए, तो इसके लिए इमीडिएटली इंक्वायरी अथॉरिटी इंक्वायरी को अर्जन कर देगा और 3 क्लियर डेज दे देगा। 3 क्लियर डेज में इंफॉर्म कर देगा चार्ज ऑफिसर को कि जो न्यू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया प्रेजेंटिंग ऑफिसर आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट को भी बोला जाएगा कि आपके पास कुछ न्यू एविडेंस है आपको खुद को डिफेंड करने के लिए, वो भी आप प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां पर एक चीज है, न्यू एविडेंस कुछ चीज है जैसे टू फिल अप द गैप और वीकनेसेस इन द केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आप देखिए कभी कभी क्या है, इंक्वायरी अथॉरिटी देखेगा कि अभी केस वीक है, केस वीक है, वो वीक केस को स्ट्रेंथ देने के लिए, पावर देने के लिए अभी प्रेजेंटिंग ऑफिसर कुछ न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि केस वीक है, वो एलिगेशन प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या बोल रहा है, कुछ न्यू एविडेंस इंट्रोड्यूस करके एलिगेशन को प्रूव करने के लिए ट्राई करेगा, मगर वो अलाउ नहीं करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी, ठीक है। वहां पर क्या है, यदि कुछ लैकुना और डिफेक्ट है ओरिजिनल एविडेंस में, कुछ कमी है ओरिजिनल एविडेंस में, ओरिजिनल एविडेंस कुछ पार्शियल है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि आप न्यू एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हो। मगर अदरवाइज जैसे केस वीक है, इंक्वायरी अथॉरिटी फील करेगा कि केस वीक है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, कुछ न्यू एविडेंस दे रहा है थोड़ा केस को पावर देने के लिए, एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, वो अलाउ नहीं करेगा उसको। ओनली जो ओरिजिनल एविडेंस में कुछ कमी है, लैकुना है और डिफेक्ट है, उसमें वो अलाउ करेगा वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। 14 सबसेक्शन 16 में अभी आ जाएगा कि बोला जाएगा चार्ज ऑफिसर को कि आप खुद को डिफेंड करो। अभी आपका बात आ गया, अभी तो पूरा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का जो विटनेसेस थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो सब प्रोड्यूस कर दिया है प्रेजेंटिंग ऑफिसर, उसका एग्जामाइन हो चुका है, अभी आप खुद को डिफेंड करो, बोला जाएगा ये अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। तो यहां पर आइदर ओरली और रिटन फॉर्म, आप मौखिक के आकार में बोल दो और रिटन फॉर्म में, ओरली बोलोगे तो आप फेस टू फेस और आपका रिटन फॉर्म में आप दे दो आपको डिफेंड करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी अभी आ गया किसके पास, ना चार्ज ऑफिसर के पास, अभी चार्ज ऑफिसर को सुना जाएगा, आपका एविडेंस लाओ, आपका विटनेस क्या है आपको डिफेंड करने के लिए, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, जो एलिगेशन आपके ऊपर लगा है उसको हम खारिज करने के लिए आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास क्या विटनेस है, आप दे दो। तो फर्स्ट उसको पूछा जाएगा कि आप फेस टू फेस ओरली आप इन इट मींस स्टेटमेंट दे दो आपको डिफेंड करने के लिए, नहीं तो रिटन फॉर्म में दो, ठीक है। ये 14-16 बोल रहा है। नेक्स्ट वन, इफ डिफेंस इज ओरल, अच्छा यदि वो फेस टू फेस जाकर बोल रहा है चार्ज ऑफिसर, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा और वो गवर्नमेंट सर्वेंट का साइन लिया जाएगा और उसका एक कॉपी चाहे ओरल हो कि रिटन हो, यहां पर याद रखिए चाहे ओरल हो रिटन हो, जो भी चार्ज ऑफिसर उसको डिफेंड करने के लिए चाहे ओरल स्टेटमेंट दे दिया कि रिटन स्टेटमेंट दे दिया, इसका एक कॉपी किसको दिया जाएगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को एक कॉपी दिया जाएगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि आइदर ओरली है कि रिटन है, जो डिफेंस स्टेटमेंट है चार्ज ऑफिसर का उसका एक कॉपी प्रेजेंटिंग ऑफिसर को दे देगा इंक्वायरी अथॉरिटी, ठीक है। चलो 14-17 में, अभी 14-17 में क्या है ना, जो ओरल विटनेसेस है, जो विटनेसेस है चार्ज ऑफिसर के पास, चार्ज ऑफिसर बोल रहा है कि मेरा भी विटनेसेस है, मुझे डिफेंड करने के लिए मैं उसको प्रोड्यूस करना चाहता हूं, ठीक है। वहीं पर आ जाएगा डिफेंस एविडेंस बिगिंस, अभी आपका
चार्ज ऑफिसर अभी उसका विटनेस को और उसका डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा खुद को बचाव करने के लिए, और उसका डिफेंस असिस्टेंट दोनों मिलकर बचाव करने के लिए अभी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा डिफेंस असिस्टेंट को कि चार्ज ऑफिसर की तरफ से आप प्रोड्यूस करो एविडेंस की जो एलिगेशंस लगाए वो गलत है। अच्छा, फर्स्ट वन एग्जामाइन होगा, वैसे नॉर्मली जैसे एग्जामाइन होता है चूज टू अपीयर एज डिफेंस विटनेस हिमसेल्फ। अच्छा, यहां पर एक मजा बात है, यहां पर एक सुन लीजिए, राइट टू एग्जामाइन हिमसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, खुद चार्ज ऑफिसर गवाह बनकर वो बोलेगा कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा है ये सब गलत है, कि ये जो फैक्ट्स है, जो स्टोरी है, जो इंप्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट है, ये सब गलत है। ठीक है, तो वो खुद को बचाव करने के लिए वो भी गवाह बन सकता है, ये ऑप्शनल है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, मगर गवाह बन सकता है। द चार्ज ऑफिसर हिमसेल्फ हैज विटनेस गिव द स्टेटमेंट टू डिफेंड हिमसेल्फ, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, नेक्स्ट वन, उसका जो डिफेंस विटनेस है, जो चार्ज ऑफिसर बोल रहा है कि मेरे पास ये विटनेस है मुझे डिफेंड करने के लिए, तो यहां पर अभी एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, जो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, अभी चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट उनका विटनेस को पूछेंगे। ठीक है, उनका विटनेस को पूछेंगे, उनके तरफ से जो विटनेस है उनको पूछेंगे, चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामाइन कौन करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर, क्योंकि प्रेजेंटिंग ऑफिसर अभी ऑपोजिशन पार्टी है, क्योंकि ये जो विटनेस है किसका विटनेस है, चार्ज ऑफिसर का। तो जो एग्जामिनेशन इन चीफ है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ है वो चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट उनका विटनेस को पूछेंगे, उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, फिर उसको री एग्जामाइन करेगा चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट। ठीक है कि नहीं, फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन के बाद इंक्वायरी अथॉरिटी भी पूछ सकते हैं, वो विटनेसेस को कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है, जो विटनेसेस का एग्जामाइन होगा वो डिफेंस वो चार्ज ऑफिसर का, ओके, वो चार्ज ऑफिसर का विटनेसेस जो है खुद को डिफेंड करने के लिए। तो एक चीफ इन एग्जामिनेशन है, चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट वो विटनेस को पूछेंगे और उसको क्रॉस एग्जामाइन करेगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर, और उसके बाद री एग्जामाइन करेगा फिर चार्ज ऑफिसर और उसका डिफेंस असिस्टेंट। देन बाद में इंक्वायरी अथॉरिटी उन विटनेस को कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, 14 सबसेक्शन 18 में क्या है ना, आफ्टर डिफेंस केस क्लोजेस, अभी तो जो चार्ज ऑफिसर का जो विटनेसेस थे, जो डॉक्यूमेंट्स था वो प्रोड्यूस कर चुका है 14-17 में, जो चार्ज ऑफिसर का जो विटनेसेस थे उसको डिफेंड करने के लिए वो तो एग्जामाइन हो चुके हैं। अभी क्या होगा, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट finishes producing his evidence the inquiry authority may question him। अच्छा, मैंडेटरी क्या है, अच्छा, यदि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट खुद विटनेस के आकार में कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है, ओके, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डिड नॉट अपीयर एज ए विटनेस इज इन ओन डिफेंस, तो अभी आइए पूछेगा, पहले क्या था, पहले मैं बताया था कि 14 सबसेक्शन 17 में कि खुद चार्ज ऑफिसर विटनेस बन सकता है और स्टेटमेंट दे सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए। यदि वहां पर वो नहीं किया है तो अभी इंक्वायरी अथॉरिटी पूछेगा कि आपके ऊपर ये फैक्ट्स है, ये आपके ऊपर ये आर्टिकल ऑफ चार्जेस है, आपके ऊपर ये मिसकंडक्ट लगा है, तो आप उसके ऊपर कुछ सर्कमस्टेंस बताइए, क्यों आपके ऊपर ये आरोप है, आप बताइए। ठीक है, तो वहां पर उसको चांस मिलेगा, ओके, टू गिव हिम ए चांस पर्सनली, तो वहां पर चार्ज ऑफिसर बता सकता है इंक्वायरी अथॉरिटी को कि ये सर्कमस्टेंसेस था। ठीक है, उसको पर्सनली मौका मिलेगा बोलने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए। ये 14-18 बोल रहा है। 14-19 में बोथ साइड का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, होने के बाद अभी इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा कि आपका ओरल आर्गुमेंट्स, हियर ओरल आर्गुमेंट्स, वो अभी इंक्वायरी अथॉरिटी ओरल आर्गुमेंट सुन लेगा, फेस टू फेस जो आर्गुमेंट्स है दोनों का, प्रेजेंटिंग ऑफिसर का, गवर्नमेंट सर्वेंट का, फिर बाद में बोलेगा कि आप रिटन ब्रीफ दे दो आप दोनों का। तो ये जो 14-19 है, अभी दोनों का
एविडेंस एग्जामाइन होने के बाद इंक्वायरी अथॉरिटी फाइनल आर्गुमेंट में ये बोलेगा कि आपका ओरल आर्गुमेंट्स बताओ, ओरली बताओ, मौखिक के आकार में। प्रेजेंटिंग ऑफिसर और गवर्नमेंट सर्वेंट को मौका देगा, वो बताएंगे और उनको बोल देगा कि रिटन ब्रीफ में दे दो, रिटन आर्गुमेंट्स दे दो। ठीक है, क्लियर। 1420 में क्या है, 1420 क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होता है। देखिए ये एक्स पार्टी क्या है कि जो इंक्वायरी अथॉरिटी इंक्वायरी किया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया, उसको बोला कि आप उसको कॉल किया कि आप इंक्वायरी अटेंड करो, वो चार्ज ऑफिसर अटेंड नहीं किया और कोई भी डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दिया, जो भी प्रोसीजियर है, मेजर पेनल्टी प्रोसीजियर है, उसको कंप्लाई नहीं किया, तो एक तरफा हो जाएगा। यदि कोई भी सपोर्ट नहीं मिला चार्ज ऑफिसर से, तो अभी इंक्वायरी अथॉरिटी क्या करेगा, प्रेजेंटिंग ऑफिसर को बोलेगा कि जो भी आर्टिकल ऑफ चार्जेस है आप एविडेंस देकर उसको प्रूव करो। वही एक्सपर्टी हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो चार्ज ऑफिसर कोई कोऑपरेट नहीं किया, उसको बुलाया गया वो नहीं आया, उसको डिफेंड करने के लिए कोई डिफेंस स्टेटमेंट नहीं दिया, और जो भी प्रोसीजियर है, मेजर पेनल्टी प्रोसीजियर है, उसको भी कंप्लाई नहीं किया। तो अभी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगा, एक तरफा से चलेगा। डायरेक्टली इंक्वायरी अथॉरिटी बोल देगा प्रेजेंटिंग ऑफिसर को कि अभी आप जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस है उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस दे दो। ठीक है, ये 1420 है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट वन, 14 सबसेक्शन 21A में यहां पर एक चीज है, when a lower disciplinary authority finds a major penalty required। अच्छा, यहां पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत ब्रीफली सुन लीजिए। लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसके पास पावर है ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करने का, ही हैज नो पावर टू इंपोज मेजर पेनल्टी, मगर वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अंडर में इंक्वायरी होगा। मगर जब अल्टीमेटली इंक्वायरी रिपोर्ट आएगा और डिटरमाइन होगा कि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, वो तो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, तो अभी वो क्या करेगा, इंक्वायरी रिपोर्ट को उसका जो हायर अथॉरिटी है उनको फॉरवर्ड कर देगा कि मेरे पास मेजर पेनल्टी का पावर नहीं है, मगर ये जो रिपोर्ट है उसमें मेजर पेनल्टी लगेगा, तो वो क्या करेगा, उसका हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इतना ही बात याद रखिए। तो यहां पर दो चीज याद रखिए, जो लोअर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसके पास पावर है ओनली माइनर पेनल्टी इंपोज करने का, मगर वो दोनों माइनर पेनल्टी प्रोसीडिंग की मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग वो कर सकता है, उसका अंडर में इंक्वायरी हो सकता है। मगर यदि इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाता है और वो डिटरमाइन करता है कि यहां पर मेजर पेनल्टी लगेगा, तो वो मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, तब वो इंक्वायरी रिपोर्ट को उसका हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, वही है। और 14 यहां पर देखिए 14 सबसेक्शन 21 उसका बीट बी में, यदि अभी रिपोर्ट चला गया हायर अथॉरिटी के पास, हायर अथॉरिटी उसको रीड करेगा और एविडेंस को देखकर वो पेनल्टी इंपोज करेगा, नहीं तो हायर अथॉरिटी के पास पावर है, वो फिर रिकॉल करेगा विटनेसेस को, क्योंकि वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो फिर विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है कि जो विटनेसेस को रिकॉल करेगा फिर उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन, री एग्जामाइन करेगा, फिर वो पेनल्टी इंपोज करेगा। ये भी हायर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास पावर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन 1422 में क्या है, यहां पे भी हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। 1422 में क्या है, एक इंक्वायरी अथॉरिटी, वो उसके अंडर में इंक्वायरी चल रहा था, और चाहे वो फुल एविडेंस कलेक्ट कर चुका है कि पार्शियल एविडेंस कलेक्ट कर चुका है, मगर अभी उसका ट्रांसफर हो गया कि उसका रिटायरमेंट हो गया, तो जितना एविडेंस हो चुका है वो क्या करेगा, उसका जो सक्सेसर है उसको हैंडओवर कर देगा। उस जहां पे एक्चुअली वो छोड़ कर गया था, अभी जहां पे अभी जब तक प्रोसीडिंग हुआ है वहां से ही प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, फिर इनिशियली से नहीं होगा। याद रखिए 1422 में यदि इंक्वायरी अथॉरिटी के अंडर में सपोज इंक्वायरी चल रहा है और उसको कुछ पार्शियल एविडेंस मिला है कि फुल एविडेंस मिला है, मगर उसका सडन ट्रांसफर हो गया कि रिटायरमेंट हो गया, तो अभी सक्सेसर इंक्वायरी अथॉरिटी के पास चला जाएगा, तो जहां पर वो प्रेडिसेसर जो इंक्वायरी अथॉरिटी छोड़कर गया था वहां से ही प्रोसीडिंग होगा। ठीक है, क्लियर। मगर उसमें भी क्लियर है
कि जो न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी आएगा, जो सक्सेसर इंक्वायरी अथॉरिटी आएगा, वो फिर रिकॉल कर सकता है विटनेसेस को, वो रिकॉल करेगा विटनेसेस को और उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन और री एग्जामाइन कर सकता है। ठीक है, मगर जो प्रेडिसेसर इंक्वायरी अथॉरिटी जहां पे इंक्वायरी छोड़कर गया था वहां से ही फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा, वहां से ही प्रोसीडिंग फिर स्टार्ट करेगा न्यू इंक्वायरी अथॉरिटी। मगर उसके पास पावर है, वो कोई भी विटनेस को रिकॉल कर सकता है और उनको एग्जामाइन, क्रॉस एग्जामाइन, री एग्जामाइन कर सकता है। यही 1422 बोल रहा है। ठीक है, अभी 1423 आ गया। 1423 इसका दो सबसेक्शन है, एक बीट आई में। अच्छा, इंक्वायरी कंप्लीट हो गया। जो इंक्वायरी अथॉरिटी जो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा उसमें क्या क्या रहेगा, what type of things actually included in the inquiry report prepared by inquiry authority, वो रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा। एक है आर्टिकल्स ऑफ चार्जेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इंप्यूटेशंस, डिफेंस स्टेटमेंट रहेगा चार्ज ऑफिसर का, और जो एविडेंस दोनों साइड का विटनेसेस को सुना इंक्वायरी अथॉरिटी, वो असेसमेंट करेगा, आकलन करेगा उनका एविडेंस को, और ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज, जो आरोप, विभिन्न तरीके का आरोप लगा है उसके ऊपर क्या फाइंडिंग मिला। तो जब आप याद रखिए, जब आप एक इंक्वायरी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपका इंक्वायरी रिपोर्ट का मेन थीम यही रहेगा। फर्स्ट रहेगा आर्टिकल ऑफ चार्जेस, स्टेटमेंट, क्या क्या चार्जेस लगा था और क्या क्या पूरा तथ्य क्या था, और जो डिफेंस स्टेटमेंट दिया था चार्ज ऑफिसर। थर्ड वन में दोनों साइड का एविडेंस को वो असेस करेगा, और फिर ईच आर्टिकल ऑफ चार्ज के ऊपर फाइंडिंग्स क्या है। ठीक है, इस तरीके से रिपोर्ट प्रिपेयर होता है। चलो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ ड्यूरिंग द इंक्वायरी द आईए फाइंड्स दैट, अच्छा यहां पर क्या है, सपोज ये एक मजा बात आ जाता है, जो भी चार्जेस आया था अभी एक न्यू चार्ज आ रहा है, जो तो ओरिजिनली तो आर्टिकल ऑफ चार्जेस ऑलरेडी इंक्वायरी अथॉरिटी को मालूम था, मगर इंक्वायरी के अंदर में इंक्वायरी अथॉरिटी को पता चला कि एक न्यू टाइप ऑफ चार्ज अभी लग रहा है चार्ज ऑफिसर के ऊपर। ओके, डिफरेंट चार्ज नॉट ओरिजिनली फ्रेम्ड, यहां पर देखिए डिफरेंट चार्ज नॉट ओरिजिनली फ्रेम्ड, इस तरीके का एक नया चार्ज लग रहा है। तो जब नया चार्ज इंक्वायरी में आता है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट को पूछेगा कि इस तरीके का न्यू चार्ज आ रहा है, क्योंकि पहले जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस ये नहीं था, अभी एक न्यू टाइप ऑफ जो आरोप आपके ऊपर आ रहा है, क्या आप उसको एडमिट कर रहे हो। अच्छा, यदि आप एडमिट नहीं कर रहे हो तो आपको खुद को डिफेंड करो, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा। उसको फर्स्ट पूछा जाएगा कि ये जो न्यू आरोप लगा है, इंक्वायरी के अंदर आया है न्यू आरोप, क्या उसको एडमिट कर रहे हो। आप एडमिट नहीं कर रहे हो तो आपको डिफेंड करो, ये भी हो सकता है। ये भी एक पार्ट है, फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस का एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर। चलो 1423 डबल आई में क्या है, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जब इंक्वायरी अथॉरिटी हैंडओवर करेगा डॉक्यूमेंट्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर करेगा, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर बाय द इंक्वायरी अथॉरिटी टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। फर्स्ट है इंक्वायरी रिपोर्ट दे देगा, रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस स्टेटमेंट है चार्ज ऑफिसर का उसको देगा, जो ओरल डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, ओरल चाहे मौखिक हो कि डॉक्यूमेंटरी एविडेंस, वो दे देगा। एनी रिटन ब्रीफ्स फाइल्ड बाय आइदर साइड, प्रेजेंटिंग ऑफिसर रिटन ब्रीफ दिया है, और यहां पर चाहे चार्ज ऑफिसर हो और उसके तरफ से डिफेंस असिस्टेंट, वो भी रिटन ब्रीफ दिया है, और एनी ऑर्डर्स इंक्वायरी टाइम में जो ऑर्डर पास हुआ था। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास, इंक्वायरी रिपोर्ट जाएगा, डिफेंस स्टेटमेंट जाएगा, जो ओरल डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है वो जाएगा, जो रिटन ब्रीफ है प्रेजेंटिंग ऑफिसर का कि चार्ज ऑफिसर की उसके तरफ से डिफेंस असिस्टेंट का, वो जाएगा, और कोई भी इंक्वायरी के टाइम में जो भी ऑर्डर पास हुआ है वो, ये सब डॉक्यूमेंट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को हैंडओवर करेगा इंक्वायरी अथॉरिटी। ठीक है, अभी लास्ट स्टेप आ जाएगा 14 सबसेक्शन 24। यहां पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि यदि इंक्वायरी होता है तब इंक्वायरी कितना दिन के अंदर खत्म होगा। आप याद रखिए, जो 14 सबसेक्शन 24 सबसेक्शन ए ये बोल रहा है कि जब इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट ऑर्डर वो रिसीव करेगा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिसीव करेगा उसका 6 मंथ के अंदर,
इंक्वायरी को कंप्लीट करेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा। यहां पर क्लियर दे दिया, शुड कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर। जिस डेट में यहां पर क्लियरली दे दिया कि द इंक्वायरी अथॉरिटी शुड कंप्लीट द इंक्वायरी एंड सबमिट द रिपोर्ट विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो बहुत क्लियर है, जिस डेट में इंक्वायरी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिसीव करेगा, ओके, उससे 6 मंथ्स के अंदर वो इंक्वायरी कंप्लीट करेगा और इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेगा। अच्छा, कुछ रीजन के वजह से सपोज वो नहीं कर पाया, वो 6 मंथ्स के अंदर नहीं कर पाया, वो फिर क्या करेगा, रीजन दे देगा कि इसी रीजन के वजह से मैं 6 मंथ्स के अंदर रिपोर्ट कंप्लीट नहीं कर पाया कि सबमिट नहीं कर पाया और मुझे थोड़ा टाइम दे दिया जाए। यदि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सेटिस्फाई होता है, सर्कुमस्टांस को पेरियूज करने के बाद सेटिस्फाई होता है, तो वन टाइम में कितना एक्सटेंशन मिलेगा 6 मंथ्स एट ए टाइम एक्सटेंशन मिलेगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस डेट में इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंटमेंट ऑर्डर रिसीव करेगा, उसका 6 मंथ्स के अंदर वो इंक्वायरी कंप्लीट करना है और रिपोर्ट सबमिट करना है। और यदि कुछ सर्कमस्टांस के वजह से वो नहीं कर पाता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी परमिशन देता है, तो फिर अगेन अनदर 6 मंथ एक्सटेंशन होगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैं सेकेंड टाइम उसको प्रेजेंट किया। मुझे लगता है इसमें 24 स्टेप्स है, अच्छे से बताया, तो उसको अच्छे से सुन लीजिए। Okay, please listen the video till the end. You can get complete information and it would be useful for you for both descriptive and MCQ exam. आज इतना ही है। थैंक यू और नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।